Hi everyone, welcome to EduTalk. Now India is a country where there are lakhs of aspirants for RBI Grade B every year. Many of them are lucky they are able to afford paid courses and get everything served on their plate. Whereas many of them, I would say, they are also very fortunate that though they could not afford paid courses, but they are ready to put their soul and mind in towards their studies. और वो लोग ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं that sir, is it possible to crack RBI grade B with self study without coaching? तो मेरा आंसर है बिल्कुल yes, बिल्कुल पॉसिबल है. I firmly believe that if there is any form of education in this world which is the best form, that has to be self study. Even if you are preparing for like RBI grade B using any paid course, ultimately it comes down that you have to do self study. Teacher is just a facilitator. तो इस वीडियो में आपको A to Z बताऊंगा कि हाउ कैन यू डू सेल्फ स्टडी एंड क्रैक द एग्जाम विदाउट कोचिंग. सारा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. लिसन टू दिस, एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज प्योर गोल्ड. और ये स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाला हूं, दिस इज प्राइमरीली फॉर पीपल हु आर गोइंग टू गिव आरबीआई ग्रेड बी इन 2024 बिकॉज 2023 के लिए आई थिंक इट्स लेट to do self preparation and crack the exam, but still if you are doing self preparation, you have already started, you can find some points related to strategy in this video for 2023. तो शुरू करते हैं. उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूं. दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर आरबीआई मैनेजर दैट वी हैव कम अप विद. दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वुड एवर नीड टू बिकम आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर. आरबीआई करता क्या है, क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, आरबीआई में सैलरी क्या है, एग्जाम में क्या फेजेस हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या कट ऑफ्स हैं, क्या बुक्स लेनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एवरीथिंग दैट यू वुड एवर नीड. सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है. आई मीन दिस इज अ बाइबल राइट फॉर ऑल योर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी. और ये बिल्कुल फ्री है. ऑल यू नीड टू डू इज टू गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. देयर इज अ लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक. डाउनलोड कीजिए, पढ़िए अच्छे से, एक दिन लगाइए एंड यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन हेयर. और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा इस गाइड बुक को पढ़कर. ठीक है, तो इसको जरूर डाउनलोड कीजिए. इट्स जस्ट टेक्स 15 सेकेंड्स टू डाउनलोड इट एंड इट्स कंप्लीटली फ्री. अब सेल्फ प्रिपरेशन के लिए 5 टू टेल यू 5 ब्रह्मास्त्रस. ब्रह्मास्त्रस that is something that can help you overpower anything in this world, right? महाभारत में ब्रह्मास्त्रस की बहुत बात की गई है. तो 5 brahmastras that I feel that you need to crack RBI grade B without coaching using self preparation. It has to be time. I will elaborate on all these one by one. Understanding the needs of the exam, books and resources, study plan and revision and practice. इसको हम एक-एक करके बात करेंगे, but before that I think one brahmastra or brahmastras of brahmastras that you need to clear RBI grade B, that has to be faith in your abilities, trust in the process that you are following. 90% of the people I meet, they are like filled with self doubt. नहीं कर पाएंगे, हम तो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, हम तो एवरेज कॉलेज से, हम तो फ्रेशर हैं. they are finding n number of reasons for not being able to clear the exam, whereas I strongly feel that they can, only if they can have trust in their abilities and they have that faith कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा. And I want all of you to have that faith in your abilities right now, because ultimately whatever you do is not going to bear any result. अभी अपनी कॉपीज पे लिखिए that I can and I will and I must crack RBI grade B. I can, I will and I must crack RBI grade B. You have to write it down in your notebook right now and then follow me in this video. तो पहले ब्रह्मास्त्र की बात करें तो टाइम. I think the biggest problem is that when we start anything, we always think that we have a lot of time, only to realize later that it was very less time we were having. And when you are doing self preparation, the only challenge that you're going to face, or the biggest challenge, is going to be time, because you would have to research, curate everything, make notes, make revision notes, find a lot of MCQs here and there. So that is going to be the challenge, and that can be only handled if you start early, if you better utilize your time. तो time को सही से use कर लो. That will solve half your problems, I'm telling you, because many people who start in November, December, October, they are like, sir, I'm not able to find so many things, I'm not able to make breakthrough. तो इसको हमें हैंडल करना है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द एग्जाम. देखिए, आप कुछ भी शुरू करते हैं, एक बहुत फेमस कोट भी है दैट इफ आई हैव टू कट अ ट्रेन 24 आवर्स,
I will spend 23 hours in sharpening the axe. कुल्हाड़ी को sharpen करने में I will spend the 23 hours and rest 1 hour I would use to cut the tree. Similarly, when you are preparing for any exam, don't just jump on to reading the content. Try to understand कि एग्जाम की नीड क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कितनी डेप्थ में हर टॉपिक को पढ़ना है, हाउ वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दैट? ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस एंड पीवाईक्यूज. बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो सीधा बुक्स एंड रिसोर्सेज पढ़ने लग जाते हैं. दे डू नॉट एनालाइज द नीड्स ऑफ द एग्जाम. कुछ नहीं होगा. You would be putting a lot of effort, but when that effort is not in the right direction, with the right strategy, it's a pure waste. Trust me, it's a pure waste. तो यहां पे आपको बहुत अच्छे से करना है, सिलेबस और पीवाईक्यूज को समझना है, go through them multiple times. Whenever you start any chapter, always go through the PYQs. That will help you understand कि इस चैप्टर में कैसी रिक्वायरमेंट है, मुझे कैसे पढ़ना है. नेक्स्ट इज बुक्स एंड रिसोर्सेज. तो मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स की आपको बुक्स बताऊंगा. इफ आई हैव टू टॉक अबाउट क्वांट, इट हैज टू बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा. फॉर रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एंड फॉर इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी. ठीक है. नाउ द बुक्स दैट आई एम टेलिंग यू, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रीड देम वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज. यू वुड हैव टू रीड देम वेरी सेलेक्टिवली. और आपको कैसे पता लगेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? ओनली इफ यू अंडरस्टैंड दी syllabus and PYQs that I told you in the last slide, then only you will be able to realize कि क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है. Right. So these are the books for quant, reasoning and English. And for current affairs in phase 1, I hope you are already knowing, otherwise there are a lot of videos on YouTube on our channel. करंट अफेयर्स में आपको जीए आती है, ईएसआई और फाइनेंस के करंट अफेयर्स आते हैं, आरबीआई नोटिफिकेशंस, यू विल गेट रिपोर्ट्स, यू विल गेट स्कीम्स. तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है. सो हियर आई वुड से दैट यूज हिंदू एंड पीआईबी. इट इज अ वेरी गुड सोर्स टू कवर जीए, रिपोर्ट्स and schemes. For RBI notifications, go through the RBI website. And from ESI and finance current affairs, the ESI current affairs would get covered through Hindu, and finance current affairs have to be covered through LiveMint. तो ये resources अगर आप पढ़ेंगे, right, और मैं बताऊंगा आगे जाके for how many months you have to read, I think that will help you completely prepare all the sections, all the types of current affairs that are required in the GA section of phase 1. ठीक है. तो काफी लोग क्या करते हैं, वो बैंकिंग के मैगजीन्स होते हैं जो IBPSP और SBI PO के, दे स्टार्ट रीडिंग देम. दे आर नॉट बैड, दे आर वेरी गुड फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, बट दे आर नॉट दैट रेलेवेंट फॉर RBI grade B, because there you will not find much report schemes or RBI notifications. Rather you will find more concentration of GA, ESI and finance current affairs. तो वहां पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं मिलेगी, right? So you have to use the relevant sources if you are using any compiled sources. Otherwise, I think these are the good sources that you can follow. These are the original sources. If you can read them daily, I think that's the best thing you can do. अभी phase 2 की बात करें, for management, I would recommend 2 books on management. One is Principles of Management by L.M. Prasad. Second is also by L.M. Prasad, but this book has the name of Organizational Behavior. And the third book is बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय BN घोष. ठीक है, आपके बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक्स भी हैं. इफ आई कम टू फाइनेंस, सो इन फाइनेंस यू गेट स्टैटिक एंड करंट पार्ट इन योर पेपर. स्टैटिक इज अराउंड से 75% वेटेज एंड करंट इज around 25% weightage. So finance, static, principles and practices of banking by Macmillan Education, and bank financial management by Macmillan Education. These books will help you cover certain part of your syllabus, but read them selectively. They are available on Amazon. Then Bharti Pathak, Indian Financial System, do not read it, very bulky, contains lot of regulations not relevant for RBI grade B. And then Indian Economy were amazing. There are certain topics in your finance syllabus related to economics, such as union budget, fiscal policy, functions of RBI, that all can be covered through Indian Economy by Ramesh Singh. If I have to move on to finance current affairs in phase 2, here you will get a lot of questions on notifications related to RBI. Read them from RBI website. Other current affairs related to SEBI or Ministry of Finance can be read from LiveMint, or Union Budget, annual report by RBI, reports on trends in the banking industry by RBI, financial stability report by RBI. All this also you need to read. 2, 3, 4 you will get from RBI website, and Union Budget is everywhere on the internet when it is released. Now coming to ESI static here,
Indian Economy by Ramesh Singh and Social Problems in India by Ram Ahuja. Here also I would like to point out जो आपका static portion है, that is having a very less weightage of around 25%, whereas the current portion has a weightage of around 75%. ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा कैन बी रेड वेरी सेलेक्टिवली. Again, very selectively. Why? Because it just has a weightage of 25% in terms of static. Majority paper आप तभी कर पाएंगे if you have good hold over the current affairs. But हाँ, current affairs पढ़ने के लिए थोड़ा आपको static portion भी पढ़ना पड़ेगा. तो इसको selectively पढ़िए. और for current affairs, हिंदू and PIB, I think these are the best two sources. PIB means Press Information Bureau, गवर्नमेंट वेबसाइट है. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस वेबसाइट से ही आते हैं. Now that was about books and resources. Now coming on to the study plan. Right here, I think if you can reach till here, you can finalize your books, understanding the needs of the exam, and you start early. I think half the job is done. And don't go for multiple sources. Always go for limited sources. Now coming to the study plan, I think this is what you can follow. June you can focus on quant reasoning and English. Then July to August you can focus on FM and answer writing. I'm giving 2 months to FM because it's very scoring. So do it well and score high marks in FM. Then September to October you have to focus on ESI, answer writing and descriptive English. And then 1st November onwards you can start with current affairs. I am not starting with current affairs earlier because for 2024 exam जो आपके current affairs होंगे वो नवंबर ऑनवर्ड्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज एग्जाम फेब मार्च अप्रैल में ही होगा. ठीक है, और रिपोर्ट्स, स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड रिवीजन ऑफ एफएम एंड ईएसआई एंड 1st Jan onwards अगेन रिवाइज क्यूआरई व्हाट वी हैव डन अर्लियर अलोंग विद मॉक टेस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं अप्रैल टू जून की बात करूं, सी क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इन आरबीआई फेज 1 इज क्वालिफाइंग. तो आपको बहुत एफर्ट नहीं डालना है, पेपर मुश्किल आता है, बट इफ यू कैन कवर सेलेक्टिव टॉपिक्स, लिमिटेड टॉपिक्स, बट प्रिपेयर देम हार्ड, सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दोस टॉपिक्स, तो आप एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं. ज्यादा मेहनत इसमें करने का फायदा इसलिए नहीं है बिकॉज दैट टाइम कैन बी यूटिलाइज बेटर फॉर फेज 2 which is merit based. फेज 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग. अब क्वांट में मतलब बहुत ज्यादा नंबर भी ले आएंगे तो फायदा नहीं होने वाला है और वैसे भी आते नहीं है. ठीक है, सो यहां पे आप ये स्ट्रैटेजी लेके चलिए. और एफएम में देखिए मैनेजमेंट आपको पूरा करना रहेगा. फाइनेंस में आप ये सिलेक्टेड टॉपिक्स कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. These topics are the core topics. Maximum objective paper इसी में से आएगा. Rest topics you cannot leave them completely, but you can go through them very quickly because they would have to be done from the perspective of descriptive writing only. ठीक है, और जो FM की आंसर राइटिंग होती है, I would say 80% it is like bookish, straightforward questions आते हैं, so you need not worry about के questions tweaked होंगे, सीधे साधे question आएंगे. If you understand the theory, understand the concept, you would be able to write well. Next, moving on to ESI. So ESI, as I told you, the static is having a very less weightage, so I would request you to go through these core chapters of economics. ठीक है, इसी में से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, जो भी थोड़ा बहुत स्टैटिक आएगा, बाकी तो करंट ही आता है. So here inflation, balance of payment, monetary policy, fiscal policy, measurement of growth, sustainable development and environmental issues and international economic institutions. अगर आप इतना पढ़ लें, your core economics is done, you would be able to understand any damn current affair using this knowledge which would be given to you from these 7 chapters. तो इनको अच्छे से कर लो, बाकी चैप्टर्स को ऊपर से पढ़ लो. यू आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर योर ESI पेपर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव बोथ. आंसर राइटिंग में थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेढ़े आते हैं, बुकिश नहीं आते हैं. सो हियर आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स एंड देन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग दोस एडिटोरियल्स एज्यूमिंग देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दैट. ठीक है, उससे आपकी काफी प्रैक्टिस होगी. और एडिटोरियल आप हिंदू न्यूज़पेपर में से पढ़िए. For descriptive English, again, I would recommend that first you learn the technicalities of writing essay, précis and comprehension. उसको assume मत कीजिए that you can write essay, précis and comprehension by yourself. Yes, you will have to do, but you have to practice that art. उसके लिए आप वीडियोस देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार देखिए. Understand that skill and that practice that skill. And how do you practice that skill? Read editorials.
एक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर ले लीजिए, हिंदू और लाइव मिंट ऑन अल्टरनेट डेज, एंड आफ्टर 3 days whenever you have read any editorial, type it. Exam is online, you would have to type it in Notepad. Do not type it in Word because Microsoft Word autocorrects all your mistakes. So use Notepad for typing your answers. ठीक है, और ये कीजिए, after you have typed anything, go to the website grammarly.com, paste it there. It will show you a lot of errors. Grammatical errors, punctuation errors, spelling errors. Be conscious of them, improve them. You will see you're making a lot of mistakes which you already know. उसको कीजिए. बाकी आप इस एक्सरसाइज को अगर बार बार करेंगे, योर टाइपिंग स्पीड विल इंप्रूव, योर स्ट्रक्चर एंड लिंकिंग ऑफ योर एंटायर आंसर विल इंप्रूव, एंड यू विल एनरिच योर कंटेंट आल्सो बिकॉज द एडिटोरियल्स दैट यू आर रीडिंग आर वेरी रिच इन कंटेंट. सो वहां से आपको एक अच्छा कंटेंट भी डेवलप होगा धीरे 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 धीरे. और initially when you are writing, maybe you are not able to write too much on the technical topics. Write anything about your family, about your city, about your neighbors, about your friends. The idea is to get into habit of writing and then scale it up slowly and slowly and slowly. And initially do not worry about time. 40 मिनट लगते हैं तो 40 मिनट लगाइए, 50 मिनट लगते हैं तो 50 मिनट टाइम लगाइए, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट स्किल, एंड वंस दैट स्किल इज बिल्ड यू विल बी एबल टू टेक दैट टाइम डाउन ग्रेजुअली. ठीक है, बाकी 1 नवंबर ऑनवर्ड्स आपको ये सारे करंट अफेयर्स करने हैं. जीए, ईएसआई, एफएम, रिपोर्ट्स, स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, राइट. और ये सारे करंट अफेयर्स अगर फेज 1 की बात करूं तो यू वुड हैव टू डू देम फॉर 3/5. आई आइडियली रिकमेंड 5 months, बट अगर टाइम कम है, नहीं हो रहा है यार, मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, वी आर ऑल ह्यूमंस, गो इट फॉर 3 months, ये भी काफी है. बट फॉर फेज 2 आइडियल इज 8 months, बट अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मोटिवेशन, वॉट एवर इज द रीजन, गो फॉर 6 months. तो ये आप नोट कर लो. आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे 9 महीने के पढ़ो, अरे 12 महीने के पढ़ो, कोई फायदा नहीं है, बेकार है, इतना याद भी नहीं रहता है. और जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, फेज 1 में 5 महीने से और फेज 2 में 8 महीने से आते हैं. उसके पीछे जाने का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है, एफर्ट ज्यादा है. ठीक है, और उसके बाद अगर जीए की बात करें डिटेल, तो जीए में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि बुक्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, एमओयूज, अलायंसेस, पार्टनरशिप्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज, डिफेंस एक्सरसाइजेस, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, जो भी आलतू फालतू जीए हर एग्जाम में आती है वही आपको यहां पे भी मिलेगी. बट ये सिर्फ ये पोर्शन है. उसके अलावा ईएसआई और एफएम के करंट अफेयर्स आएंगे. रिपोर्ट्स की बात करूं तो आपको जो रिपोर्ट्स पढ़नी है रिलेटेड टू सिलेबस पढ़नी है. पॉवर्टी पे रिपोर्ट आई आपको पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, बिकॉज आपके सिलेबस में है. मीडिया इंडस्ट्री पे रिपोर्ट आई आपको पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, आपके सिलेबस में नहीं है. एंड रीड ओनली द रिपोर्ट्स व्हिच आर रिलीज बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज ऑफ स्टेचर, मतलब जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं जो वो रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं वही पढ़िए. और उनके नाम आप यहां देख सकते हैं. इंटरनेशनल लेवल पे आई वुड से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, ओईसीडी, यूनेस्को, एडीबी, यूनाइटेड नेशंस. नेशनल लेवल पे बात करूं तो सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, एक्सेट्रा. छोटे छोटे बॉडीज हैं, गार्टनर है, एसएनपी है, मतलब इनका आप मत ही पढ़िए, उनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा या बहुत कम चांसेस हैं. अगेन देयर इज नॉट मच वैल्यू इन द एफर्ट दैट यू वुड बी पुटिंग. और रिपोर्ट्स की सिर्फ समरी पढ़िए. इफ यू सी द एंटायर रिपोर्ट इज वेरी बिग, डोंट गो थ्रू दैट रिपोर्ट, रीड ओनली द समरी. अगर समरी भी नहीं मिल रही है तो रीड दैट रिपोर्ट थ्रू द कवरेज ऑफ दैट रिपोर्ट गिवन इन द न्यूज़पेपर. कैसे, मतलब जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया तो आपने लिखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 प्लस द हिंदू. जब आप इसको सर्च करेंगे तो हिंदू में जो ये रिपोर्ट आई होगी, हिंदू ने भी उसको कवर किया होगा, एक आर्टिकल लिखा होगा, आप वहां से उसको कवर कर लीजिए. इट वुड हेल्प यू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, आपको आज पता चल गया, इसको आजमाइए. यू नीड नॉट रीड द एंटायर रिपोर्ट्स, लेंथी रिपोर्ट्स, बिग रिपोर्ट्स, जस्ट कवर that report given in the newspaper like Hindu or Economic Times or Live Mint, whatever it is. Maybe you can cover it from 2 newspapers to know get that covered in a elaborative manner. But original source से report बिल्कुल मत पढ़िए, it is going to be very lengthy. Now coming on to the schemes में आपको पुरानी schemes भी पूछी जाती हैं which were launched in 2005, 2010, 2012. बट आपको वरी नहीं करना है कि कौन सी स्कीम पुरानी है, नहीं है. ऑल यू नीड टू फोकस इज दैट रीड स्कीम्स व्हिच आर इन न्यूज. कोई भी न्यूज आपके एग्जाम से
6 से 8 महीने पहले अगर न्यूज में है, न्यूज में मतलब वो पीआईबी पे उसका कवरेज आ गया, नाम आ गया, आर्टिकल आ गया, हिंदू में कवरेज आ गया, नाम आ गया, आर्टिकल आ गया, फॉर वॉट एवर रीजन, किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, वॉट एवर रीजन, ठीक है, अगर वो पीआईबी और हिंदू पे उसका नाम आ गया, कवरेज आ गया, आर्टिकल आ गया 6 to 8 months बिफोर योर एग्जाम, दैट स्कीम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इतना ही करना है। अब ये 6 से 8 महीने पहले जो भी स्कीम न्यूज में है, चाहे वो 2005 में लॉन्च हुई है, चाहे 10 में, डजंट मैटर, यू वुड हैव टू कवर ऑल दी स्कीम्स। और स्कीम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं, गुच्छों में आते हैं, एक स्कीम पे 4 क्वेश्चन आएंगे, जैसे फेज 2 में एक आधा क्वेश्चन करंट पे होगा, जिसके कारण वो न्यूज में थी। अदर क्वेश्चंस वुड बी ऑन द स्टैटिक पार्ट, जो स्कीम का बैकग्राउंड है कि किसको, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, व्हाट इज द लॉन्च ईयर, व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न, व्हाट इज द एलोकेशन इन बजट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट बेनिफिशियरीज, ब्रांड एम्बेसडर्स, ब्ला 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 ब्ला, उन चीजों पे आप पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी आरबीआई नोटिफिकेशंस, देखिए ये आप आरबीआई वेबसाइट से पढ़िए, सिर्फ फैक्चुअल एस्पेक्ट पे फोकस कीजिए, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझने में दिक्कत आ सकती है तो फैक्चुअल चीजें रट लीजिए। बाकी रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है, बिकॉज आई थिंक anything that can kill your preparation, even if you start early, is that you keep forgetting the things, or you have that psychological barrier कि मुझे याद नहीं है, तो उसके लिए रिवीजन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग। और यहां पे हमें क्यूआरई भी रिवाइज करना है 1 Jan ऑनवर्ड्स, और मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, कम दीजिए, एनालाइज देम प्रॉपरली, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स एंड देन गिव अनदर मॉक टेस्ट आफ्टर 15-20 days। डू नॉट रश थ्रू, उससे कुछ नहीं होने वाला है। नाउ रिवीजन एंड प्रैक्टिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज I again feel that many of the aspirants feel that knowledge सबका बाप है, नॉलेज ही लो, नॉलेज से मार्क्स आएंगे। एग्जाम से 2 दिन पहले भी नई नई किताबें पढ़ रहे होते हैं, नए नए नोट्स पढ़ रहे होते हैं, वो गलत है। नॉलेज इन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स, रेदर द रिटेंशन ऑफ दैट नॉलेज इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स। उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा, दिस कैन बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन योर एंटायर जर्नी। देन नॉलेज इन इटसेल्फ is not marks, right? Application of that knowledge is something that will give you marks. And how do you apply your knowledge? How do you learn the application of knowledge? By practicing lot of MCQs. खास करके मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं, जब तक आप MCQs प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। And the third is again that when you apply that knowledge, it has to be applied in exam like environment where you have anxiety, mental pressure, time management, you have to go by your intuition, lot of factors are involved in, तो वहां पे I would say that learn to apply that knowledge within an exam like environment by solving lot of mock test। ये जरूर कीजिए, अगर ये नहीं करेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे 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 तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू डिफरेंशिएट फ्रॉम एवरीवन एल्स हु इज डूइंग एज who is working as hard as you। तो ये जरूर करिए। So I think if you can implement this 5 steps, 5 Brahmastras in my book, ठीक है, आपका एक प्रोसेस सेट होगा। And as I told you, once you have trust in the process, you start believing in yourself, you start to have faith in your abilities, और फिर सारे सेल्फ डाउट खत्म हो जाते हैं, एक अजीब सी मोटिवेशन आती है, and you just rush towards your journey। You are eager enough to achieve your dreams, to get your dream job। और यही आपको लाना है, but for that you have to follow these steps, you have to acquire these Brahmastras, then only you would be able to fulfill your dream। तो अभी आपको सबको मुझे प्रॉमिस करना है, जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, that sir we will give our best, we will make sure that we will follow these Brahmastras। You have to let me know by typing in the comment section that sir we will give our best and we will make sure that we follow these 5 Brahmastras। Thank you guys, have a nice day, Jai Hind, bye bye।